Good morning, class. Welcome to this lecture of CSA2. We are studying third unit, that is ER, Entity Relationship Modeling. So in the last lecture recently, we have seen how do you make an ER diagram. So let us revise it. Again, we'll see that what is an ER diagram. So we are seeing an example of a university which has certain number of departments, and the departments offer several courses, and each course is constituting of certain modules, and then student can enroll into a particular course, so he can take particular modules, and that particular module or course is taught by a lecturer. So here you can see, you can find the keywords like departments, course, then you can find the modules, then student and teacher. So you can write them like this. They can be different entities, then one by one you can find the relationship between them, such as first of all we have find the relationship between department and course. So what is the relationship between department and course? A particular department is offering certain courses. Second, we'll find the relationship between the course and the module. So what is the relationship between the course and the module? That is, a particular course includes certain modules. That is, in every course there can be different modules. Then after that we have found the relationship between department, that is department is offering courses and the courses include modules. Then we'll find the relationship between the course and the student. So what is the relationship between course and the student? A particular course will enroll into the, a particular student will enroll into a specific course. So that is, student enrolls into the course. Then we'll find the relationship between module and student. So a student takes a module. So if he is enrolling into a particular course, that means he is there to study a specific module, that he is going to study a specific module. So that is, student takes modules. Then you can find the relationship between the module and lecturer. So what the lecturer is going to teach, he is going to teach a specific module. So that is the relationship between lecturer and module, that is lecturer teaches module. And then what is the relationship between department and lecturer? So department is employing a particular lecturer. So employees, that is, lecturer is an employee of a particular department. So department is employing a particular lecturer. That is the relationship between department and lecturer. And last relationship, that is between the lecturer and student, that is lecturer tutors the specific student. That means he is teaching a module. मतलब लेक्चर की रिलेशनशिप मॉड्यूल से भी है, स्टूडेंट से भी. ही इज टीचिंग अ मॉड्यूल बट ही इज ट्यूटरिंग अ स्टूडेंट. सो इन दिस वे द ER diagram for university can be considered. Very simple example. Here you can see, suppose you talk about a department as mechanical engineering department of a university or biotechnology department of university. In that department there are certain courses. In that particular course a student is registering. That means that department is offering a course. Now when the student enrolls into the course, that has specific modules, and that modules are taught by a lecturer, and that lecturer is employed by the department. So this, finding these entities, you can draw an ER diagram. ये entities को आप ऐसा कलेक्ट करके ER diagram draw कर सकते हो. As I have told you, you have to practice drawing the ER diagram for different things. Once you practice and once you are up to it, well versed with this thing, then it will be very easier for you. नहीं तो फिर आप लोगों का ऐसा सबसे टफ होता चला जाएगा ER diagram. What you have to do, you have to practice it. ना उसके बाद में हमने पढ़ा था वीक एंटिटी एंड स्ट्रॉन्ग एंटिटी. तो वीक एंटिटी मतलब एक ऐसी एंटिटी जिसकी खुद की एक प्राइमरी की नहीं होती है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने देखा था कि हम बोले अगर थर्ड ईयर मैकेनिकल, स्टूडेंट फ्रॉम थर्ड ईयर मैकेनिकल, बट थर्ड ईयर मैकेनिकल मीन्स देर आर टू सेक्शंस इज थर्ड ईयर मैकेनिकल, TM1 एंड TM2. नाउ देर आर डिफरेंट बैचेस, दैट इज द बैच TM1 M1, TM1 M2. व्हेन वी टॉक ऑफ काउंसिलिंग, TM2 M3, such as TM1 M1, TM1 M2, TM1 M3, and same for TM2. So which specific student from third year mechanical, whether it is from TM1, whether it is from TM2, whether it is from first batch, whether it is from second counseling batch, we are not clear about it. So in that case, such kind of entity, that is called as weak entity, which cannot be identified by itself. So that entity is called as weak entity. Now a member of weak entity set is called as subordinate entity. A weak entity is an entity that cannot be uniquely identified by its attributes alone. The entity set which does not have sufficient attributes to form a primary key is called as a weak entity. A number of weak entity set is called as a subordinate entity. So that is about a specific weak entity. Weak entity मतलब कि आप एक स्पेसिफिक उसका एट्रीब्यूट नहीं है. जैसे आपके अगर मैं रोल नंबर की बात करूँ कि TM1 रोल नंबर 1, TM2 रोल नंबर 1, तो जैसे मैं बताता कि क्लास और रोल नंबर TM1 R1, TM1 2, TM1 3, TM1 4, तो जैसे ही मैं बताता हूँ ये स्पेसिफिक, तो आप एकदम से आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि ये स्पेसिफिक स्टूडेंट है. तो यूनिकली जो आइडेंटिफाई करता है आपको, हम उसको बोलते हैं प्राइमरी की.
तो ऐसा कोई एंटिटी है कि जिसकी आप प्रॉपर स्पेसिफिक प्राइमरी की नहीं बन सकती, तो ऐसे एंटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस एंटिटीज आर कॉल्ड एज वीक एंटिटीज। ये जो एंटिटीज है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज वीक एंटिटीज। और ऐसे फिर एंटिटीज का जो सब सेट रहता उसको हम बोलते हैं मेंबर ऑफ वीक एंटिटी सेट इज कॉल्ड एज सबऑर्डिनेट एंटिटी। अब ऐसा कुछ सेट है एंटिटी सेट का, तो उसके जो मेंबर उसको हम बोलेंगे सबऑर्डिनेट एंटिटी। अब जैसी वीक एंटिटी है तो वैसी फिर क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग एंटिटी। तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी मतलब क्या, विच इज इट्स प्राइमरी की। जैसे हमने सपोज एक बताया कि एक हमारा टेबल है, वो टेबल के अंदर हमारी वैल्यूज है, नेम है, नेम मिडल दैट इज नेम मिडल मतलब पूरा नेम है उसका, मोबाइल नंबर है, अब उसका सेक्शन है, फिर सेक्शन ए और बी, उसका ईयर है, सेक्शन है और उसका रोल नंबर है। तो अब अगर वो टेबल में सपोज हम बोलेंगे स्पेसिफिक रोल नंबर 1, तो वो एक ही स्टूडेंट आएगा और कोई दूसरा स्टूडेंट उसके अंदर नहीं आ सकता। और वो सेक्शन बोलेंगे हम सेक्शन ए और रोल नंबर 1, तो वो एक स्टूडेंट आएगा। लेकिन अब हमने क्या किया, सेक्शन ए की, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ कि TM1 के लिए हमने एक स्पेसिफिक टेबल नहीं बनाया, हमने थर्ड ईयर का एक कॉमन टेबल बनाया और उसमें एक कॉलम रखा सेक्शन। तो TM1 भी हो सकता है, TM2 भी, और फिर रोल नंबर। तो अब TM1 में रोल नंबर सपोज 1 रहा, तो हमको दो चीज़ें लेनी पड़ेंगी, सेक्शन TM1 रोल नंबर 1, तो ये दोनों मिला के फिर एक प्राइमरी की बनती। तो ये अपनी स्ट्रॉन्ग की नहीं होती। हम लोग क्या करेंगे, TM1 का एक सेपरेटली टेबल बनाएंगे, उसमें रहेंगे स्टूडेंट नेम, रोल नंबर और भी कुछ इन्फॉर्मेशन, फ़ोन नंबर। तो जैसे TM1 टेबल हमने बना दिया, तो उसमें हम जैसे हम बात करेंगे रोल नंबर 1 की, तो वो एक ही पर्सन रहेगा वहाँ पर रोल नंबर 1 का। सो इट विल बी यूनिकली आइडेंटिफाइड। सो दैट पर्टिकुलर एट्रीब्यूट विच यूनिकली आइडेंटिफाइड्स एंड दैट कैन गिव you the response as a particular row or tuple which can be selected, that is called as a primary key. तो वो जो एंटिटी होती है आपकी, उसको आप लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एंटिटी। एन एंटिटी सेट दैट हैज अ प्राइमरी की इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट। अ मेंबर ऑफ स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट इज कॉल्ड एज डोमिनेंट एंटिटी। अब उसमें अगर स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट में आप अगर कॉम्बिनेशन की बात करते हो, तो उसको जो बोलते हो डोमिनेंट एंटिटी। मतलब वो जो एंटिटी है वो मेन है, कि आपको अगर रोल नंबर ही नहीं पता तो फिर उसके बदले में रोल नंबर ही नहीं पता, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसके बेसिस पे आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो। उसके बाद में फिर आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप। अब ये वीक एंटिटी और स्ट्रॉन्ग एंटिटी के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप लाना है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे कि वीक एंटिटी और स्ट्रॉन्ग एंटिटी के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप रहता है, और वो रिलेशनशिप के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, वीक एंटिटी को स्ट्रॉन्ग एंटिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। यू कैन कन्वर्ट वीक एंटिटी इनटू स्ट्रॉन्ग एंटिटी। और वो क्यों ज़रूरी रहता है, कई चीज़ों में ज़रूरी क्यों रहता है, ये हम आगे एग्जाम्पल देखेंगे। तो उनका जो रिलेशनशिप है उसको बोलते हैं आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप, दैट इज कॉल्ड एज आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप। द रिलेशनशिप बिटवीन वीक एंटिटी एंड स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट इज कॉल्ड एज आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप। अब हम डायरेक्टली एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो हियर यू कैन सी वन एग्जाम्पल। यहाँ पर कैसा है, दो एंटिटीज़ है। हियर यू कैन इजीली सी देयर आर टू एंटिटीज। वन एंटिटी इज लोन, सेकेंड एंटिटी इज पेमेंट। लोन है, एक पेमेंट है। अब लोन के फिर एट्रीब्यूट्स क्या है, लोन नंबर, लोन अमाउंट, और पेमेंट के एट्रीब्यूट्स है पेमेंट अमाउंट, पेमेंट डाटा, पेमेंट नंबर। अभी पेमेंट डाटा इन्होंने लिखा है यहाँ पे डिस्क्रिमिनेटर, तो फिलहाल ये पार्ट को हम रहने देते हैं कि डिस्क्रिमिनेटर क्यों बोला है। अब इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, ये है लोन पेमेंट। यानी ये जो लोन है, ये पर्टिकुलर लोन हो गई एक एंटिटी, इसके हो गए दो एट्रीब्यूट, लोन अमाउंट और लोन नंबर। पेमेंट एक एंटिटी होगी, उसकी होगी तीन एट्रीब्यूट, पेमेंट अमाउंट, पेमेंट डाटा और पेमेंट नंबर। और ये लोन और पेमेंट जो एंटिटी है, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है कि ये जो लोन पे कर रहा, ये लोन क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। तो ये होगी एक एंटिटी, लोन क्या हो रहा, पे हो रहा। लोन को आप क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। अब इसके बाद में आपको यहाँ पर देख सकता कि यहाँ से जैसे आपने देखा था कि एरो जिस साइड से रहेगा, तो इस साइड से एरो है, मतलब एक ऐसी रिलेशनशिप है 1 to मैनी। मतलब एक लोन की आप काफ़ी सारी पेमेंट कर सकते हो, यानी पेमेंट यू कैन डू मैनी पेमेंट। तो रिलेशनशिप कैसी होगी, जिस साइड में अपन एरो रहता उस साइड में हम लोग रहती वन, ये हमने देखा था 1 to मैनी। मतलब लोन और पेमेंट का क्या रिलेशनशिप है, लोन जो है तो लोन का और ये एंटिटी का क्या रिलेशनशिप है, ये जो रिलेशनशिप है पेमेंट का, ये सिर्फ ये हो सकता वंस, और ये पेमेंट ये तो कितने भी टाइम्स हो सकता। अब आप बोलोगे सर इसमें से क्या समझना है, तो अब इसमें से हमने क्या किया, पेमेंट को सबसे पहले तो दो बार मार्क किया है, दो रेक्टेंगल में। तो दो रेक्टेंगल में हमने बताया, मतलब वो कैसी एंटिटी है, वीक एंटिटी। वी ऑलरेडी नो, वी डेजिग्नेट है वीक एंटिटी बाय टू रेक्टेंगल। सब देख सकते हैं कि ये रेक्टेंगल है एक, ये रेक्टेंगल आउटर एंड इनर, तो ये होगी एक वीक एंटिटी। तो अब आपने क्या किया, आपके लोन का पेमेंट किया,
तो जब आप लोन का पेमेंट करेंगे तो अब सपोज यहाँ पे हम ऐसा ये करते कि एक आपका टेबल है लोन, उसमें लोन नंबर, लोन अमाउंट। तो अब आपका लोन नंबर है सपोज L1 और अमाउंट है X। तो जैसी मैं बात करूँगा, एक टेबल है लोन, उसमें ऐसा L1, L2, L3 ऐसे कई सारे, जैसे सपोज एक टेबल है उसमें L1, L2, L3 और ये सबके आगे कुछ ना कुछ अमाउंट लिखा है X, Y, Z। तो जैसी मैं बात करूँगा L1 लोन की तो ये हो जाएंगे X अमाउंट वाला, L2 लोन तो ये X अमाउंट, मतलब ये जो L1 है ये लोन नंबर क्या है, ये एक स्पेसिफिक प्राइमरी की है, मतलब ये एक ऐसा यूनिक आइडेंटिफिकेशन है जिसके बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, वो पर्टिकुलर अमाउंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसमें और भी कई कॉलम्स हो सकते हैं, जैसे सपोज अपन ने लिखा कि L1 उसका अमाउंट X, उसका फ़ोन नंबर, कुछ भी उसका फ़ोन नंबर, फिर उसका ईमेल आईडी। तो आपके ऐसे कई सारे एट्रीब्यूट्स आप वो टेबल में हो सकते हैं, लेकिन उसको आइडेंटिफाई कैसे कर रहे हैं आप, आइडेंटिफाई कर रहे हैं आप उसको एक ही एट्रीब्यूट से, और वो है उसका लोन नंबर। तो लोन नंबर होगी उसकी सपोज प्राइमरी की, ठीक है, यहाँ तक तो हमारे ख्याल में आ गया। अब उसके बाद में पेमेंट को आपने बोला है, पेमेंट में क्या है, पेमेंट अमाउंट कितना है, पेमेंट डाटा और पेमेंट नंबर। तो सपोज पेमेंट नंबर ये हो गया 1, पेमेंट डाटा हो गया कुछ तो भी कि आपने जो पेमेंट भरा हो गया 2000 समथिंग, और पेमेंट डाटा हो गया कुछ तो भी डिस्क्रिमिनेटर। तो अब मैं आपको ये एग्जांपल से बताता, इसका मतलब यहाँ पर कहते हैं रिलेशन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक एंटिटी सेट। ओके, सो वील अंडरस्टैंड इट हियर। देखो ये एक्चुअली क्या होता है, वीक एंटिटी का टोटल पार्टिसिपेशन। सपोज अब एक ये है एंटिटी है L1 और उसका लोन है, एक लोन है, लोन एंटिटी L1, तो मतलब एक लोन नंबर है L1 और उन्होंने कितना लोन लिया है 1 लाख, L2 ने कितना लोन लिया है 2 लाख, L3 ने कितना लोन लिया है 3 लाख। अब क्या कर रहे हैं ये सभी जो लोग हैं ये एक स्पेसिफिक अमाउंट पे करते, कितना पे करते हैं, EMI सपोज 7000, 7000, 7000, मतलब L1 भी पे कर रहा 7000, L2 भी पे कर रहा 7000 और L3 भी पे कर रहा कितने 7000। तो सभी जो क्या कर रहे हैं, ये कितना अमाउंट पे करते हैं 7000 से 7000, 7000, 7000। अब ये 7000 हम इसने क्या किया, इसने पे किया 7 अप्रैल को, इसने भी पे किया 7 अप्रैल को, इसने भी पे किया 7 अप्रैल को। तो L1 ने 7 तारीख को पे किया 7000 उसकी EMI, ठीक है। सेम वेज ने L2 ने भी 7 अप्रैल को पे किया उसकी लोन अमाउंट 7000, और सेम वेज में फिर L3 ने भी पे किया 7 तारीख को उसकी लोन अमाउंट डेट इज 7000 रुपीज़। तो अब उसके बाद में क्या हो गया, आपका जो पहला टेबल था उसमें आपके दो चीज़ें थी पहले टेबल में, क्या दो चीज़ें थी, लोन नंबर और लोन अमाउंट। अब उसके बाद में दूसरा आपका पेमेंट है, उसमें क्या है, ये यहाँ पर अब आप देखो, अब आपके ख्याल में आएगा। अब आपने पेमेंट तो किया, लेकिन अब पेमेंट में क्या है, यहाँ पे आपने लिखा है पेमेंट का डेट, ये डाटा नहीं है, डेट है, ठीक है। पेमेंट की डेट कौन सी है 7 अप्रैल। उसके बाद में पेमेंट का अमाउंट कितना है 7000 रुपीज़। तो 7 अप्रैल पेमेंट का डेट है, और ये आपने क्या किया, पेमेंट का अमाउंट लिखा है 7000 रुपीज़, और पेमेंट नंबर लिखा है आपने, सपोज पेमेंट नंबर 1, 2 एंड 3 एंड सो ऑन। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर मैंने बोला पेमेंट नंबर 1 ऑन 7 अप्रैल अमाउंट इज 7000, तो पेमेंट नंबर से आप पता कर सकते हो कि कौन से लोन अकाउंट का आपने पैसा भेजा है। पेमेंट नंबर आपने लिखा है 1, पेमेंट नंबर 2, पेमेंट नंबर 3, यानी ऐसा हो गया कि सपोज ये जो था L3 इसने सबसे पहले आके भर दिया पैसे, ये जो L3 था इसने सबसे पहले आके भर दिया 7 तारीख को पैसे, तो आपने इसको नंबर दे दिया 1, पेमेंट नंबर 1। L1 ने सेकंड इस पे भरा तो आपने इसको नंबर दे दिया 2, और L2 ने थर्ड इस पे भरा, आपने इसको नंबर दे दिया 3। ये हो गया आपके पेमेंट नंबर। तो P2, P3, P4। अब आपके डेटा में आप सर्च करोगे तो आपको बोलेंगे P2, तो P2 मतलब कौन सा लोन नंबर, तो आपको ये तो पता चल जाएगा कि P2 मतलब जिसने जिसने दूसरी बार इंस्टॉलमेंट भरा, मतलब सुबह से जो दूसरा ग्राहक है जिसने इंस्टॉलमेंट EMI भरा और उसने अमाउंट भरा 7 तारीख को कितना 7000 रुपीज़, तो वो हो गया था P2। मतलब ये हमारे ख्याल में है कि पेमेंट नंबर सपोज यहाँ पर हो गया P2, पेमेंट की डेट हो गई, ये डेट है, पेमेंट की डेट हो गई कोई भी डेट सपोज 7 तारीख, और पेमेंट का अमाउंट हो गया 7000। लेकिन ये तीनों चीज़ों पर से हमको ये पता चल रहा है कि ये P2 किसने भरा है, वो लोन नंबर L1 ने भरा है या L2 ने भरा है या L3 ने भरा है। नहीं, हमने उसके बीच में कोई रिलेशन ही नहीं रखा, सिर्फ अपन ने पेमेंट नंबर एक नंबर दे दिया पेमेंट नंबर।
लेकिन वो पेमेंट नंबर आपने किसको दिया, L1 L2 L3, ऐसा आपने कहीं पे कुछ किया ही नहीं है। आपने सिर्फ एक पेमेंट नंबर दे दिया, जो पहले आएगा उसको 1 नंबर, जो बाद में आएगा उसको 2nd नंबर, फिर 3rd नंबर, फिर 4th नंबर, लेकिन आपने उसके ऊपर कुछ मेंशन नहीं किया। तो ऐसी जो एंटिटीज़ रहती, ऐसी जो एंटिटीज़ है कि जिसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अब इसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि आपने पेमेंट डेट देखा 7 अप्रैल को 1000 लोगों ने पेमेंट किया है और सभी लोगों ने 7000 पेमेंट किया है। तो फिर आप कैसे पहचानोगे कि L1 ने कितना किया, L2 ने कितना किया, L3 ने कितना किया। और साथ ही साथ आपने जो पेमेंट नंबर दिया है वो आपने कुछ लॉजिक से नहीं दिया। आपने पेमेंट नंबर कैसे दिया, जो पहले आ रहा उसको 1, बाद में आ रहा उसको 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 एंड सो ऑन। तो हियर यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द एंटिटीज। यहाँ पर आप एक स्पेसिफिक यूनिक आपके पास प्राइमरी की नहीं है जिसके बेसिस पे आप ये सारा डाटा आइडेंटिफाई कर सकें कि आपको किसने कितना इंस्टॉलमेंट पे किया है। तो इसके लिए फिर हम लोगों को क्या करना पड़ता है, इसके लिए फिर हम लोग जो एक ये यूज़ करते उसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप्स। आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप्स में हम लोग क्या करते, हम लोग एक चीज़ करेंगे। अब हमने क्या किया कि नेक्स्ट हमारा एक टेबल बनाया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो अपन ने बनाया लोन पेमेंट, ये एक टेबल है। तो हमने क्या किया, ये लोन पेमेंट में क्या ऐड किया, लोन नंबर, पेमेंट डेट और पेमेंट अमाउंट। पहले इसमें क्या था, पहले इसमें सिर्फ पेमेंट डेट, पेमेंट नंबर था, पेमेंट डेट था और पेमेंट अमाउंट। लेकिन अब हमने इसमें किया कि अब हम इसने एक कॉलम और ऐड किया, दैट इज लोन नंबर। मतलब ये जो यहाँ पर था हमने क्या किया, अब ये जो था यहाँ पर इसमें हमने और एक एट्रीब्यूट ऐड किया एंड दैट वी हैव एडेड एज लोन नंबर। कौन सा एट्रीब्यूट ऐड किया है यहाँ पे, लोन नंबर। ये जो एट्रीब्यूट इधर दिख रहा है ना लोन नंबर, ये सपोज ये हमने क्या किया इसमें भी डाल दिया, ये लोन नंबर इसमें भी ऐड किया पेमेंट में। तो अब क्या हो गया, अब जो पेमेंट की आपकी एंटिटी है, तो ये पेमेंट की एंटिटी में अब आपके कितने एट्रीब्यूट्स हो गए, एक हो गया लोन नंबर, एक हो गया पेमेंट नंबर, एक हो गया पेमेंट डाटा, पेमेंट डेट और एक हो गया पेमेंट अमाउंट। तो अब 4 एट्रीब्यूट हो गए। तो अपन फिर से देखते हैं। अब सपोज लोन नंबर है L1, उसका पेमेंट नंबर है सपोज 3, उसका पेमेंट का डेट है 7 और उसने भरा है 7000 रुपीज़। तो अब अगर आपने बोला कि आपने ये निकाला कि L1 + 3 पेमेंट नंबर, L1 और 3, L1 और पेमेंट नंबर 3, तो अब आपको क्लियर कट पता चल जाएंगे L1 3 उसने 7 तारीख को भरा हुआ है 7000 रुपया। सो दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड एज कि मेकिंग अ वीक एंटिटी ए स्ट्रॉन्ग एंटिटी। और इनके बीच का जो फिर रिलेशनशिप है वो हम लोग क्या करते हैं, वो यहाँ पर फिर हम डबल एरो से बताते कि इसको हम लोग ने क्या किया, एक ये यहाँ पर जो था इसको हम लोग क्या किया, ये जो हो गया ये हो गया आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप्स। अब हमने क्या इसकी रिलेशनशिप को प्रॉपरली आइडेंटिफाई किया और ये हो गया इसका कंप्लीट पार्टिसिपेशन। अब देखो, अब हमने क्या किया, अब मैं बात करूँगा L1 और पेमेंट नंबर, ये सपोज इसको दिया मैंने पेमेंट नंबर P2, इसको दिया था P1 और इसको दिया था P3। तो अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर L1 + P2। ऐसा अब मैंने क्या किया, आपको ये तो पता है कंपोजिट की रह सकती प्राइमरी की। कंपोजिट की मतलब कि एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स मिला के भी हमारी प्राइमरी की बनती। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पर ये लिया लोन नंबर L1 और साथ में पेमेंट नंबर P2। तो जैसे ही मुझे L1 P2 की इन्फॉर्मेशन चाहिए, L1 P2 की अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैंने कॉम्बिनेशन लिया L1 P2। अब उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो क्लियर कट पता चलेगा L1 दिस इज और पेमेंट P2 इसने क्या किया, इसने 7 तारीख को 7000 पेमेंट किया था। वेरी सिंपल। अब ये यूनिकली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो स्पेसिफिक रो को। सिर्फ आपने क्या किया था कि पेमेंट नंबर और लोन नंबर दोनों को आपने मर्ज किया। मर्ज किया मतलब आपने एक ही टेबल में दो वैल्यूज ली है, दो अलग अलग एट्रीब्यूट्स लिए, एक पेमेंट नंबर एक लोन नंबर। लेकिन जब आप रिट्रीव करते तो आप क्या करते, पेमेंट नंबर और लोन नंबर को आप साथ में लेते, दैट इज आप उसको एक कंपोजिट की बनाते, प्राइमरी की, पेमेंट नंबर प्लस लोन नंबर, और ये दोनों मिला के आपको मिलता जो पर्टिकुलर वो टेबल है, वो पर्टिकुलर रो है, उसकी पूरी वैल्यूज। अब फिर आपको क्लियर कट पता होता कि L1 है लोन नंबर, P2 है आपका पेमेंट नंबर और इन्होंने पे किया था 7 तारीख को 7000 रुपीज़। वैसे फिर ये आप बात करेंगे L2 P1, L3 P2। सो दिस इज हाउ इट इज। नाउ इट बिकम्स वेरी इजियर फॉर टू L1 + P3। तो L1 P3 में एक ही एंट्री रहेंगे। हाँ, P3 में अगर सिर्फ आप P3 से देखेंगे तो आपको एक एंट्री मिलेंगी। लेकिन L1 ने सपोज 10 बार पैसे भरे, एक बार सुबह भरा, दोपहर में भरा, शाम को भरा, क्योंकि आप कितने भी बार पैसे भर सकते हो। और ये आप एक दिन की बात मत करो, सपोज आप बात करो एक महीने की। तो एक महीने में मैं अगर सपोज मेरे पास ज़्यादा पैसे रहे
तो मैं क्या करूँगा, मैं 2 बार भर दूंगा, 3 बार, तो आप कितनी भी बार पैसे पे करो दैट इज़ नॉट एन इशू, आपको हर बार एक पेमेंट नंबर अलग मिलेगा। लेकिन अब आपने क्या किया, पेमेंट नंबर को लोन नंबर से एसोसिएट कर दिया। तो आपने सपोज एक आपका एक पेमेंट नंबर 2 है, एक बार P2 मिला, एक बार P4 पेमेंट नंबर है, मतलब आपने सुबह से आके सबसे पहले एक EMI भर दी, सबसे पहला नंबर आपका था तो आपने EMI भर दी कुछ, फिर आपने और एक बार गए तो आप तब चौथे नंबर पे थे, तो फिर आपको 2 पेमेंट नंबर मिले थे, P1 और P4। तो अब L1 P1 से आपने कितना पैसा भरा डायरेक्टली मिल जाएगा, और L1 P4 से कितना, यानी आपका लोन नंबर और जो आपका पेमेंट नंबर है, ये दोनों मिला के आपका एक कंपोजिट प्राइमरी की बनेगा, दैट इज योर यूनिक आइडेंटिटी। एंड विद दैट यूनिक आइडेंटिटी यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक रिकॉर्ड, उससे आपको जो आपका स्पेसिफिक रिकॉर्ड है वो आइडेंटिफाई करते आएगा। सो दैट इज ऑल अबाउट weak entities and strong entities. And this is also called as identifying relationship. The relationship between weak entity and strong entity, it is called as identifying relationship. इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप था इसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप। ये देखो मैंने यहाँ पर आपको बताया था, हियर यू हैव सीन डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप्स। यहाँ पर इन दिस डायग्राम आई हैव शोन यू, ये यहाँ पर आपने देखा था आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप। और आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हो, आप इसको रिप्रेजेंट करते थे बाय दिस 2। आप यहाँ पे क्या करते हो, 2 ड्रॉ करते हो डायमंड्स, 2 डायमंड्स मतलब 1 आउटर एंड 1 इनर, और इससे आप रिप्रेजेंट करते हो ये आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप को। वीक एंटिटी को आप रिप्रेजेंट करते हो विथ डबल दिस रेक्टेंगल। ओके, तो ये हम लोग देख चुके हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द वीक एंटिटी एंड द स्ट्रॉन्ग एंटिटी एंड दिस पर्टिकुलर टर्म दैट इज आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप्स। नाउ वी हैव ऑलरेडी सीन, इस पर से हमको क्लियर कट समझ में आता। ये आप देख सकते हैं कि जैसे आपने टेबल बनाया था, मैंने आपको बताया था आपका ये है रिलेशन का नाम लोन, उसमें लोन नंबर, लोन अमाउंट एंड सो मैनी थिंग्स। वैसे आपका दूसरा जो रिलेशन है वह है लोन पेमेंट, उसमें आपका लोन नंबर, पेमेंट डेट, पेमेंट अमाउंट। तो अब आपने इसमें क्या किया था कि इसमें का एक आइटम इसमें ले लिया, तो फिर ये जो आपका बन गया ये पेमेंट जो एक टेबल बन गया, इसी में से आप ये दोनों अगर निकालो, ये दोनों को साथ में लोग कंबाइन करके, तो आपको आपकी पूरी वैल्यूज एज इट इज़ रिट्रीव हो जाएंगी, योर रिकॉर्ड्स। अब देखो एग्जाम्पल के लिए, अब जैसे आपको मैंने बताया था ER डायग्राम, तो आपको इस तरह के एक ER डायग्राम यहाँ बना सकते हैं। इसमें देखो क्या है, अब यहाँ पे कई सारे एंटिटीज है, कस्टमर एक एंटिटी है, लोन एक एंटिटी। तो कस्टमर ने क्या किया, लोन को बोरो किया है, और कस्टमर क्या कर रहा है, लोन पे कर रहा है, कस्टमर इज पेइंग द लोन। अब यहाँ पे दिखा है इट इज़ गिवन इन टू लाइन्स, वहाँ पे जो रिलेशनशिप बताया डबल डायमंड्स में बताया, राइट। इसका मतलब क्या है कि ये कौन सी रिलेशनशिप है, आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप। और पेमेंट को भी बताया 2 इसमें, मतलब पेमेंट कौन सी एंटिटी है, वीक एंटिटी है, पेमेंट इज अ वीक एंटिटी। सेम देखो यहाँ पे पेमेंट अमाउंट, पेमेंट नंबर, पेमेंट डेट है, यहाँ पे लोन अमाउंट, लोन नंबर है। तो अब आप इसको कैसे पता कर पाओगे, तो इसमें आपने क्या किया था, इसमें आपको पता ही नहीं कर चल सकेगा। इसमें अगर आप सिर्फ सपोज आप पेमेंट निकालेंगे, पेमेंट अमाउंट, पेमेंट नंबर, पेमेंट डेट, तो इस पर से आप ये पेमेंट अमाउंट पर से कौन सा पर्सन है, कौन सा लोन है, कौन सा कस्टमर है, आप नहीं निकाल सकोगे। तो वो निकालने के लिए आपने फिर क्या किया था, ये लोन नंबर जो यहाँ पर हमने शो नहीं किया, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, कि हम क्या करेंगे, इसको ये एंटिटी यहाँ पर लेके आ जाएंगे, दिस नॉट दिस लोन नंबर, ये इसकी एक एंटिटी और यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो अब क्या ये एंटिटी में मतलब ये एक एट्रीब्यूट और ऐड करेंगे, लोन नंबर, पेमेंट के साथ हम लोन पेमेंट करके जो एक बनाएंगे। तो ये जो सिंबल है ये यही बताता है। इसका मतलब क्या है कि ये आपने इसको आइडेंटिफाई किया रिलेशनशिप को, ये हो गया आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप। दिस इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। अब देखो यहाँ पे जो है कि ये बाकी चीज़ें हो जाए, ये कस्टमर के एट्रीब्यूट्स है, कस्टमर नेम, स्ट्रीट, ID, कस्टमर का सिटी, उसके बाद में कस्टमर बैंकर एम्प्लॉय, हो सकता हो कस्टमर बैंक का एम्प्लॉय भी हो, वर्क्स फॉर मैनेजर, फिर वो कब स्टार्ट किया था, कब नहीं स्टार्ट किया था, उसके बाद में जब उसने अकाउंट बनाया था वो डिपॉजिटर भी हो सकता कस्टमर, तो उसका एक्सेस डेट, फिर उसका अकाउंट है तो अकाउंट का ID, बैलेंस, तो ये सारी चीज़ें। सो दिस इज़ हाउ अ स्पेसिफिक ER डायग्राम इज बीइंग मेड। तो इस तरह से हम लोग ER डायग्राम बनाते हैं। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आप प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे आप ER डायग्राम बनाना शुरू करो। 2-4 एंटिटीज़ लो, 1-2 लो, 3-4 लो। व्हीकल शोरूम का एग्जांपल ले सकते हैं आप, मेडिकल ले सकते हो, हॉस्पिटल ले सकते हो, होटल ले सकते हो, कई सारी चीज़ें हैं जहाँ पर कुछ ना कुछ 5-6 अलग अलग डिपार्टमेंट हो सकते हैं, और उनके बीच में बना रिलेशन। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नहीं बनेगा, गलत होगा, समझ में नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे आपके उससे लर्निंग बढ़ेगा। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि ये जो चीज़ें, ये देखो जो कुछ भी होता है ना, इट हैपन्स फॉर अ रीज़न। तो ये जो सब्जेक्ट हम लोग देख रहे हैं ना, इसमें सबसे मेन बात ये कि इससे आपका लॉजिक बिल्टअप होता, रिलेशनशिप्स कैसे एसोसिएट करना, ये से बिल्टअप होता। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, आपने करना चाहिए विथ ऑल द इंटरेस्ट,
क्योंकि जब मैंने असाइनमेंट भी दिया था, जब आपको दिया था कि यू हैव टू सबमिट इट ER डायग्राम, लेकिन किसी ने भी ER डायग्राम सबमिट नहीं किया। इनफैक्ट आई हैव आस्क्ड टू सबमिट द ER डायग्राम फॉर द यूनिवर्सिटी इटसेल्फ, लेकिन वो भी आपने दिया नहीं। सो दैट इज़ नॉट राइट। अगर आप ये सब्जेक्ट को इस तरह से लेंगे, सो दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू। यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स, एंड वंस यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स, यू लूज ऑल द इंटरेस्ट। अगर आपको समझ में नहीं आया ना, तो इंटरेस्ट वैसे ही अपने आप में खत्म हो जाता। तो आपको सबसे पहले तो थोड़ा सा पढ़ना होगा, थोड़ा समझना होगा, क्योंकि आज हमारे 3 यूनिट कंप्लीट होते आ रहे नियर अबाउट, और आपको अगर ये चीज़ समझ में नहीं आएंगी तो देन यू विल लैग बिहाइंड। एनीवेज, तो ये था अबाउट दिस। नाउ वी टॉक अबाउट द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनिट, दैट इज ER डिजाइन इश्यूज। सो ER डायग्राम इश्यूज क्या होता है जनरली, इट ऑफन मिसलीड द कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट्स एंड डिजाइन। अब जैसे हमने ER डायग्राम बनाया, तो अब देखो सबसे बड़ा सवाल ये जो आप लोगों के भी मन में आ रहा कि हमने फिर एंटिटीज कहाँ पर यूज़ करना, एट्रीब्यूट्स कहाँ पर यूज़ करना, और हमने एंटिटी कौन सी बनाना, एट्रीब्यूट कौन सी बनाना, प्राइमरी की कैसे आ सकती, फॉरेन की कैसे आ सकती। तो ये सारे जो इश्यूज आते हैं, ये बेसिकली जो है यही हम यहाँ पर देखते हैं। तो इसमें बेसिक जो है, इट लीड्स टू अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ ER डायग्राम एंड सर्टन इश्यूज दैट डू नॉट मीट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रियल वर्ल्ड एंटरप्राइज मॉडल। हम बेसिकली ER डायग्राम मतलब क्या बनाते हैं, एक रियल वर्ल्ड जो है उसका एक ब्लूप्रिंट हम बनाते हैं, वो एक कंसेप्ट बनाते हैं उसका ब्लूप्रिंट रियल वर्ल्ड मॉडल का। लेकिन उसमें कुछ चीज़ें थी, जैसे आपने एंटिटी यूज़ करना चाहिए, एट्रीब्यूट। तो दीज आर सर्टन इश्यूज, whether to go for entity set or attribute, whether to go for entity set or relationship, whether to go for binary और n relationship। अब binary relationship मतलब दो लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप रहेंगे, बाइनरी मतलब 2, और एनरी मतलब मोर देन 2 रिलेशनशिप्स, 2 से ज़्यादा रिलेशनशिप जो है वो बाइनरी। अब वो रिलेशनशिप मतलब जैसे हमने अभी देखा था ना, कस्टमर और लोन। तो कस्टमर बोरोस लोन, या फिर लोन और पेमेंट में, द लोन और पेमेंट में उसमें क्या रिलेशनशिप थी कि लोन ही इज पेइंग द पेमेंट, ही इज मेकिंग द पेमेंट फॉर दैट पर्टिकुलर लोन। तो ऐसी रिलेशनशिप 2 से ज़्यादा अगर होती तो उसको हम लोग बोलते हैं टर्नरी, उसके बाद में क्वार्टरनरी एंड सो ऑन। तो उसको एक वर्ड जो है कि मोर देन दैट, दैट इज कॉल्ड एज एनरी, एरी रिलेशनशिप्स। सो दिस ऑल थिंग्स वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो ये ER डिजाइन इश्यूज है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। टिल देन व्हाट यू शुड डू, व्हाट आई हैव टोल्ड टुडे, यू हैव टू गो थ्रू इट। वो बरोबर वीक एंटिटी और स्ट्रॉन्ग एंटिटी प्रॉपरली समझो, उसका एग्जाम्पल एक जगह पे उसको अच्छे से पुटअप करो, नोट डाउन करो, ओके। और जो कुछ भी मैं बताता हूँ वो आप फॉलो करो। विदाउट दैट यू विल नॉट बी एबल टू गो थ्रू दिस सब्जेक्ट, एंड वंस यू फॉलो इट, यू विल बी, दिस विल बिकम द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट फॉर यू। बहुत मजा आएगा इसमें करने में। ओके देन विल स्टॉप हियर, सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन थैंक यू क्लास, गुड डे, जय हिंद।